everyone. I hope you guys are doing great and your cat tuition going on well. Today we want to discuss mensuration topic, and in the description of this video there is a link. You can use that. You can download this PPT. So we have done till now triangles, quadrilaterals, circle, polygon, and now we want to do mensuration. So question involving triangle and mensuration or quadrilateral mensuration we'll be doing in this topic. So let's see how many question has been asked. Total 20 question has been asked till now in last 5 year that are from mensuration. अच्छा, ये नंबर तो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, रीजन बीइंग कि लाइक जो इस क्वेश्चन में भी एरिया पूछा है, आई हैव इंक्लूडेड दैट. लाइक पूरा वो क्वेश्चन तुम्हारा रेक्टेंगल का हो सकता है, जस्ट समवेयर इट इज गिवन डेटा अबाउट एरिया, आई हैव इंक्लूडेड दैट क्वेश्चन ऑल्सो इन द मेंसुरेशन. ठीक है, अगर लाइक कोर मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखो तो लाइक आई थिंक वो 5-6 ही होंगे, 5 to 7, मैक्स टू मैक्स 7 होंगे कोर मेंसुरेशन के, लाइक जिनमें कोन हो, जिनमें सिलेंडर हो, है ना, जिनमें 3D डायग्राम इन्वॉल्व हो, वो क्वेश्चन आई थिंक 5 to 7 ही है. मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन के एरिया इन्वॉल्व वाले क्वेश्चन. ठीक है, वॉल्यूम और 3D वाले क्वेश्चन 5 to 7 ही है. जस्ट यू नीड टू नो द बेसिक फॉर्मूलाज. अगेन मेंसुरेशन के लिए कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता इनमें. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट द सुपर इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक फॉर्मूलाज लाइक वॉल्यूम का फॉर्मूला एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला. तो आई थिंक दैट फॉर्मूला इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट. वो जनरल फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ना कि लाइक तुम एक एक इंडिविजुअल का याद कर रहे हो, है ना. तो इफ यू आर क्लियरिटी अबाउट दैट थिंग यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम. So in 2017, two questions were asked, 18, 2, 3, 19, 4, 24, 21, 5 questions were asked. We can expect two questions from this topic, but it may not necessary that these questions are like कि pure तुम्हारा mensuration से हो. Mostly question may be from rectangle or some topic that will be involving area or something. So that type of, considering that type of question, we can expect two questions from this topic. Fine. So let's solve this question. This is from CAT 2017 SWOT 1. A solid metallic cube is melted to form 5 solid cubes whose volumes are in the ratio 1:1:8:7:7. Okay. So like there is a big cube, है ना, एक तुम्हारा big cube है और उसको break कर दिया गया है, that into 5 melt कर दिया गया, not break, melt कर दिया गया है 5 cubes में जिनका volume का ratio दिया हुआ है. So you know like if you melt the cube or any body, उसका जो volume होता है that doesn't change. So if we add up this volume, so that is 8 to 10, 54, 64. So volume of bigger volume, initially bigger volume must have been, let's say volume of bigger volume must have been 64. So if volume is 64, you know the formula, side of the bigger cube must have been, that is 4 centimeter. I hope it's clear till now. Now, the percentage by which the sum of the surfaces of these 5, so sum of the surfaces of these 5 exceed the surface area of original nearest. So the surface area of this one will be 6a square, that is 16,696. So surface area of this bigger cube is 96 centimeter square. Now, if this is the volume of these cubes, so side of these cube will be 1, 2, 3, 3 in this ratio, or we can say I have just taken this data as same. So these are the sides of these 5 cubes. Now if you know the side of these cubes, so you can find the surface area. Surface area will be 6a square, 6 side ka square. So let's write this 4. I'm skipping few steps. I'm expecting at this stage you are aware of these things, है ना, you are not finding difficulty in understanding these things. तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें skip करूंगा, so I'm expecting from you guys can understand this thing. So this is 10, 10, 20, 24, 24, 6, 144. So surface area of these all cubes sums to 144 centimeter square, whereas the bigger one has 96 centimeter square. So how much increment is there? How much by it's exceeded? That is 44, 4, that is 48. So this is 50% more than this. So this is the right answer. I think this was easy one. A ball of diameter 4 is kept on the top of a hollow cylinder standing vertically. Okay. A ball of diameter 4 centimeter, 4 centimeter diameter है and hollow cylinder. Okay. So let me just make cylinder. This is hollow cylinder. On it a ball is kept. Okay. Height of cylinder is 3.
height is given and volume of cylinder is given. So volume of cylinder, everyone knows the formula, that is this, and height is given. We can find the radius, that is 3, r equal to root 3. So radius of this cylinder is root 3. Then the vertical distance centimeter, the topmost point of the ball. Okay. So like very interesting question. Like इसमें देखो एक मिस्टेक हो सकती है. अब मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए अगर तुमने फिगर आउट कर लिया. इसका जो रेडियस है वो 2 है और इसका रेडियस रूट 3 है. तो मतलब बॉल लाइक ऐसे हाफ नहीं रखी हुई ना, तो बॉल कुछ ऐसे है. दिस इज द लाइक अपर को ज्यादा है ना, इनसाइड इज लेस. तो बॉल का सिचुएशन कुछ ऐसा, यू नीड टू फाइंड दिस, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, हमें ये लेंथ निकालनी. सो लाइक लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉल एंड आई थिंक इट कैन बी डन सुपर इजी. लाइक इट्स नॉट सुपर इजी, बट अगर तुम्हें ये चीज़ फिगर आउट हो जाए देन आई थिंक देयर इज नथिंग टू डू इन दिस क्वेश्चन. सो दिस इज रूट 3 and radius of ball is 2, so this will be 2. So you know, like this is a 90 degree, so this is 1. I hope you guys remember this 1 root 3 और 2 मैं लास्ट क्लास में कहीं बताया है. So this is 1, so this is 1 and this height is 3 and this is radius, this is 2 again, so this is 3. So answer will be 3 plus 3, that is 6 centimeter. So the top of the ball will be 6 centimeter above the ground. Okay. A right circular cone of height 12, right circular cone, this is right circular cone of height 12 feet, height 12 feet, stands on its base which has a diameter 8 feet. So its diameter is 8 feet, it means its radius will be how much? Radius will be 4. The tip of the cone is cut. Okay, tip of the cone is cut. This is cut, which is parallel, हाँ जैसा मैंने बनाया, 9 feet from the base. So like this is on the like, so this is 9 feet, this is 9 feet. I hope like you are able to understand the diagram. Pi का वैल्यू दिया हुआ है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन, तो लाइक ऊपर वाला हटा दिया गया, दिस पोर्शन. So basically we need the this one. So for this type of question we can use the BPT theorem. और लाइक बेसिकली यहाँ पर क्या है, तुम्हें फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम निकालना है. इफ यू नो द फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला, लाइक इफ यू सी द नोट्स, फॉर्मूला इज देयर और वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो पहली बात तो इसका हाइट है 12 और इसको 9 पे कट किया गया. इसको 2D में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं. इसको 9 पे कट किया गया एंड 9 पे कट किया गया, यहाँ कहीं पे कट किया गया, ये पोर्शन 3 बचेगा. अब चाहो तो लाइक इसको करने के बहुत सारे तरीके, चाहो तो लाइक फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला लगा सकते हो. अगर तुम्हें फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला नहीं पता है ना, इफ यू डोंट लाइक फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला, एनीवे मैं लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को रिवाइज हो जाए, एग्जाम में कहीं जरूरत पड़ जाए तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई. तो दैट इज 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर. ये फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला होता है, नोट्स में भी दिया है, वॉल्यूम चेक कर लेना. ठीक है. तो बेसिकली है क्या, मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पर बिना फ्रस्ट्रम के फॉर्मूला के भी कर सकते हो और फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो. आई विल टेल यू बोथ द मेथड. ठीक है. अगर ये स्मॉल आर है और ये आर है और ये एच है, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्ट्रम विल बी दिस वन. ठीक है. अब अगर ये 3 है और ये 9 है, ठीक है, सो इट मीन्स दिस रेशियो इज तुम्हारा 1:3. ये 1:3 रेशियो है, 1:3. तो ये 0 है, ये 1 है. आई एम अप्लाइंग हियर BPT थ्योरम. 1:3 है, तो दिस इज 1 ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 + 3 4, 1 + 3 4. सो बेसिकली इसका रेशियो 1:4 में होगा. तो अगर ये 4 है, अगर बॉटम का रेडियस 4 है तो इसका रेडियस 1 हो जाएगा, इसका रेडियस 1 हो जाएगा. आई होप ये समझ में आ गया होगा जिसको BPT थ्योरम पता है. अगर नहीं पता है देन यू कैन यूज़ द सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट. मैं थोड़ा सिमिलैरिटी को अवॉइड करता हूँ बिकॉज उसमें डायग्राम वगैरह कंसिडर करने पड़ते हैं और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. दैट्स वाई तुमने अभी तक देखा होगा आई हैव ऑलवेज अवॉइडेड सिमिलैरिटी. लाइक इसमें भी देखो सिमिलैरिटी यूज़ होता था, मैंने सिमिलैरिटी यूज़ नहीं किया है. ठीक है. दिस इज द रीज़न बिकॉज सिमिलैरिटी में आई डोंट नो, लाइक अगर तुम कंफर्टेबल हो यू कैन डेफिनेटली यूज़, बट मुझे लगता है कि चांसेस होते हैं एरर होने के. एनीवे यहाँ पर तो आसान है, यहाँ पर सिमिलैरिटी देखो कैसे आसान है. अभी क्वेश्चन आई थिंक हार्डली लाइक 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए पूरा, जस्ट मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स वाई इट मे टेक टाइम. ठीक है. तो लाइक ये 3 है और ये 9 है. अगर पूरे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का रेशियो देखो, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, 1:4 का है, 3 और 12.
तो इनके साइड्स इसका रेशियो भी 1:4 होगा, तो अगर ये 4 है तो ये 1 होगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बोथ वेज आर फाइन, तुम्हें जो आता हो, बट मैं बीपीटी थ्योरम को प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू योर सिमिलैरिटी वाला, ठीक है। आई रेयरली यूज सिमिलैरिटी अनटिल अनलेस कि लाइक कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें बिना सिमिलैरिटी के सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब इसका हमें रेडियस मिल गया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सॉल्व हो गया। v इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, हाइट फर्स्ट टर्म की कितनी है 9 है, और इसका एक 4 है और एक 1 है, तो 16 + 1 + 4, 16 + 1 + 4, 16 + 1 + 4। आई होप ये सब समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। आर स्क्वायर एट इज 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 4 × 1, तो कितना आ जाएगा 21, 21 7 3 21, 21 कैंसिल कर दो, 22 × 9 आ गया, दैट इज 9 to 18, 18 × 11, 198 इज द आंसर। दिस इज द वे, दिस इज द वन वे। अब अगर फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला नहीं पता है तो बीपीटी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। बीपीटी में क्या है, व्हाट बीपीटी सेज, बीपीटी में क्या होगा, इन दोनों का, इस वाले का वॉल्यूम और इस वाले वॉल्यूम का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसका देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, 1³ - 0, अगर वॉल्यूम होता है तो क्यूब करते हैं, एरिया होता है तो स्क्वायर करते हैं, 4³ - 1³ इनके साइड्स का, ठीक है। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 64 - 1, दैट इज 63। अच्छा ये सब चीज़ें तुम्हें नोट्स में नहीं मिलेंगी ना, लाइक अब इसको मैंने सीखा है, इसको मैं लिख नहीं सकता हूँ बीपीटी के थ्योरम कैसे क्या वर्क करता है। मे बी मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड क्यों, आई डेंट रिमेंबर। जो प्रिंटेड नोट्स, जो तुम्हारा टाइप्ड नोट थे उसमें भी हो सकता है थोड़ी चीज़ें। अब इसका रेशियो 1:63 है, 1:63 है। तो अब लाइक पूरे वॉल्यूम का तुम निकाल सकते हो, फिर इसका निकाल सकते हो, अब कैसे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इसका जब मैंने रेशियो तुम्हें बता दिया तो पूरे क्यूब का निकाल लो, पूरे कोन का निकाल लो, और फिर इस पार्ट का निकल आएगा, ठीक है। ये कर लेना अपने आप। नो, इन अ पैरेललोग्राम ABCD ऑफ, पैरेललोग्राम है तुम्हारा मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, इक्वल एंड पैरेलल, 72 एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। द साइड CD एंड AD, CD is 9, AD is 16, ओके। सो दिस इज 9, अगर ये 9 है और हाइट यहाँ पे निकल आएगी 72, दैट इज 8, तो ये हाइट जो होगी ये 8 हो जाएगी, ये हाइट जो है 8 सेंटीमीटर। लेट P बी अ पॉइंट ऑन CD, P बी अ पॉइंट ऑन CD, CD, तो ये ऐसे एक्स्ट्रा आ जाएगा ना इधर, अगर इधर परपेंडिकुलर करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये इनसाइड तो परपेंडिकुलर जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा, तो दिस इज P, ये D है तुम्हारा, ये D है और ये तुम्हारा P पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट P है जो परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर। अब तुम्हें परपेंडिकुलर की लेंथ पता है ना, ये 18 है, ये 16 है, और परपेंडिकुलर तुम्हारा 8 है जो अभी हमने निकाला है, इसी का आई थिंक यूज़ है जो हमने पहले कैलकुलेट किया, दिस इज 8, एरिया वाले से हमने निकाला, दिस इज 8। अब क्या बोले, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल APD, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक तुम अगर इसको ऐसे ड्रॉ करते, आई थिंक अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता तो ये ऐसे आ जाता P, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये P ऐसे आ जाता, C इधर होता, D इधर होता, P ऐसे होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारे आंसर पे, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वैसे भी बना के देख सकते हो, बाई चांस जब ऐसे ड्रॉ करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अब ये 8 है, ये 16 है ना, और ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका ट्वाइस है, ट्वाइस है, तो आई थिंक ये 8√3 होगा। अगर चाहो तो देख ले, लाइक वैसे कर लेते, बट आई थिंक दिस विल बी 8√3, क्योंकि 1:, ये वाला रेशियो ना 1:√3 वही चीज़ आ रही है, 1:√3, ठीक है। अदरवाइज लेट्स चेक इट, तो 16 का स्क्वायर होता है, 16 का 256 आई थिंक है ना, 64 एंड 64 3 होता है तुम्हारा, आई एम जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ मैं इसे, 192, 192 6 15 256, राइट, दैट इज 8√3। अब इसका एरिया पूछा, एरिया सिंपल हो गया, 8/64 दैट इज 32√3 इज द आंसर। फ्रॉम अ रेक्टेंगल, अभी तक देखो लाइक मेंसुरेशन का क्वेश्चन कौन सा था जो प्योर मेंसुरेशन हो, यू कैन से दिस वन ऑल्सो, ये दो क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे, एंड
दिस वन तुम्हारा ये पैरेललोग्राम का ही क्वेश्चन है ना, जस्ट एरिया इंक्लूड किया है, ये भी तुम्हारा जस्ट पैरेललोग्राम का ही क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल का। ABCD ऑफ जस्ट एरिया इंक्लूड कर दिया है, दिस इज नॉट लाइक ये तुम 2D का ही क्वेश्चन है ना, दिस इज नॉट 3D। रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर पार्ट ABCD, दिस इज योर रेक्टेंगुलर, इसका एरिया है 768 एंड सेमी सर्कुलर पार्ट विथ डायमीटर AB, तो ये सेमी सर्कुलर पार्ट है एंड एरिया का एरिया है 72 पाई, तो 72 पाई इसका एरिया है, डेट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2 है ना, सेमी सर्कुलर है बाई 2, तो दिस इज 44 है ना, 144 का क्या होता है 12 होता है, तो मतलब इसका रेडियस मतलब ये साइड 24 है, अगर ये साइड 24 है 24 3 72 एंड 2 दैट इज 32, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं, लाइक देखने में फिगर जो लग रहा, डोंट वरी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। द पेरीमीटर ऑफ द लैपटॉप, तो बेसिकली तुम्हें ये बताना है ये पूरा, ठीक है, तो 32 तुम्हारे दो हैं और 24 एक है, तो 32 64 64 24 डेट इज 88, तो 88 वाला ऑप्शन एक ही है, आई थिंक यही हो जाए, ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये करने की ज़रूरत भी नहीं, एनीवे कर लेते हैं, ठीक है, बट यही आंसर होगा तुम्हारा। ये कितना आएगा, 2 पाई आर होता है कंप्लीट का, तो पाई आर, पाई और आर कितना है 12। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स पैरामीटर पेरीमीटर आर इन द रेशियो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेट से ए बी साइड का है, तो ए बी साइड का है, तो लेट से ए बी एरिया हो जाएगा एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर, तो 2A प्लस बी होता है, तो 4A प्लस बी का स्क्वायर दैट इज 1:25, तो अगर मैं रूट हटाऊँ तो यहाँ पर भी रूट आएगा, फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, है ना। द लेंथ ऑफ, तो इक्वेशन से हमें बेसिकली ए और बी का रेशियो निकालना है, ठीक है, अब इसमें कोई बड़ा हो कोई छोटा डेट वी डोंट नो, वो एंड पे निकल आएगा, ठीक है, एंड पे जैसा भी आएगा वो रेशियो हो जाएगा, सो ए बी का रेशियो निकालना है, सो लेट्स 25 AB 4 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें हैंड राइटिंग, ठीक है, 25AB इक्वल्स टू 4 25AB that is 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 8AB, तो AB को इधर लाते हैं, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 3 17 -17 आ जाएगा, ये -7 -17 -17 AB। आई होप ये सारे स्टेप तुम समझ पा रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ कहीं पर भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल एक्सप्लेन लाइक इन सम नेक्स्ट वीडियो, है ना, अगर कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आता है, कैलकुलेशन वगैरह तो खुद ही से थोड़ा टाइम देकर तुम समझ पाओगे, समझ जाओगे, ओके, तो लाइक ए बी से डिवाइड कर दें, है ना, ए बी से डिवाइड कर दें, तो दिस इज 4A एंड अगर ए बी से डिवाइड करेंगे ना, तो दिस इज A/B बचेगा एंड दिस इज 4B/A बचेगा एंड दिस इज 17 इक्वल्स टू 0। अब आई थिंक लाइक वी कैन यूज द ऑप्शन हियर बेटर, ऑप्शन यूज कर ले, वो कर सकते हो, या फिर चाहो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो, कैसे, दिस इज 4x ले लो, दिस इज 4/x हो जाएगा, देन दिस 17 इक्वल टू 0, तो अगर इसको हम क्या करें x, तो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 17x इक्वल टू 0, आई थिंक हम लाइक ऑप्शन से भी कर सकते थे, दैट्स एनीवे, तो दिस इज, आई होप अभी तक मैं सही कर रहा हूँ, अगर अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, मैं हर बताता रहता हूँ हर क्लास में तुम्हें, अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, एंड आई विल पिन दैट कमेंट, लाइक अभी मैंने देख, लाइक तुम लोग देख रहे हो तो एक दो जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हें पता चलती है, ताकि लाइक बाकी अगर कोई देखे तो उससे प्रॉब्लम ना हो। 16, सो दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस, वैसे तो इसे लाइक आई एम डूइंग दिस थिंग, वैसे मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, इट्स नॉट एन प्रॉब्लम, ठीक है,
4x माइनस 4 एंड 4x माइनस, ठीक है, एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज -1, सो दिस इज x माइनस 4, सो x इक्वल टू 4। तो एक आएगा तुम्हारा x इक्वल टू 4 और दूसरा आएगा 1/4। तो तुम्हारा क्या पूछा है, लाइक शॉर्टर टू लॉन्गर 1:4 इज द आंसर। एनीवे अगर यहाँ पर कर लेते तब भी वही 16, देखो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता 1/4 दैट इज 17, ठीक है। सो एनीवे यू कैन डू, लाइक डिपेंड करता है एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम कितना। अब पैरेललोग्राम हैज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ सी डी इज 8 एंड लेंथ ऑफ ए डी इज एस, ओके। तो एक पैरेललोग्राम है, देखो ये भी क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का है तुम्हारा, इसमें भी कोई ऐसा मेंसुरेशन नहीं है। ए बी सी डी इसका एरिया है 48, द लेंथ ऑफ सी डी इज 8, सी डी वेरी सी डी, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी, ए डी का, अच्छा ए डी का एस दिया हुआ है। अब अगर क्या हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है ना, ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, तब इस एस की वैल्यू 6 होगी। अब अगर ये रेक्टेंगल नहीं है तो ये हल्का सा टिल्ट होगा, कुछ भी होगा, तो इससे क्या होगा कि एस की जो वैल्यू होगी वो या फिर 6 होगी या फिर 6 से बड़ी होगी, क्योंकि जैसे ही तुम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जैसे टिल्ट करोगे वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एस की वैल्यू तो ये 6 या 6 से बड़ी होगी। सुपर इजी क्वेश्चन, लाइक दिस इज हार्डली लाइक 40 सेकंड क्वेश्चन है ना, अगर तुम्हें 30 सेकंड पढ़ने में लग जाते हैं तो सॉल्यूशन तो 10 सेकंड के अंदर। सो दिस इज द आंसर, एनीथिंग एल्स वी कैन डू। नहीं, एस 6 हो सकता है 5 से 7 के बीच में, हाँ, बट 5, देखो यहाँ पर क्या 5.5 भी इंक्लूडेड है ना, उस पर तो नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, लेस देन तो होगा ही नहीं। तो सुपर इजी क्वेश्चन, ये मेरे स्लॉट में था 18 स्लॉट 2। कॉर्नर्स आर कट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये तुम्हें लाइक बुक में भी क्वेश्चन मिल जाएगा आई थिंक, जस्ट चेक द बुक, आई थिंक लाइक मोस्टली तुम्हें हर बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। कॉर्नर्स आर कट फ्रॉम रेक्टेंगल, ये पहले लाइक अगर तुमने सही से प्रिपरेशन की है तो ये क्वेश्चन तुमने ज़रूर किया होगा, यही बता रहे, हाँ। अभी हेक्सागन बन जाएगा और पूछेगा कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन टू द ट्रायंगल। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं, जस्ट सिमेट्री का यूज़ करना है, नथिंग एल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने एरियाज हैं यहाँ पर, 9 ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल इक्वल हैं, तो 9 एरिया है, सबका 1 यूनिट ले लेते हैं, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया 9 है। हेक्सागन में कितने ट्रायंगल्स हैं, 6, तो इसका एरिया 6 है, सो दिस इज योर आंसर। सुपर इजी क्वेश्चन, 2 is 3 द आंसर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारे देखो कहीं से नए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं बुक से जिससे तुम 99 इजिली ला सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि फालतू का इतना वो क्रिएट किया गया हाइप कि नहीं कैट में हमेशा नए क्वेश्चन आते हैं, कैट बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। मैंने ही बोला था कि लाइक ये क्वेश्चन रिपीट करते, तो आई थिंक एक दो लोगों का मैंने कमेंट भी देखा था, देवर सेइंग कि क्या सच में कैट में क्वेश्चन रिपीट करते हैं ना, देवर सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्हें ऐसा ही बताया गया है, फैकल्टीज टीचर तुम्हें यही बताते रहते हैं कि हमेशा कैट में नए क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, जस्ट दीज आर द क्वेश्चन दैट आर इन द बुक, खुद जाके चेक कर लो। इतने क्वेश्चन होते हैं कि लाइक जिससे तुम 99 ला सकते हो, दोज क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द बुक। और हम क्या करते हैं, सिर्फ डिफिकल्ट डिफिकल्ट करते रहते हैं। इफ द रेक्टेंगुलर फेस ऑफ अ ब्रिक हैव देयर डायगोनल इन द रेशियो, तो लाइक एक रेक्टेंगुलर फेस है ऑफ अ ब्रिक, अच्छा तो ब्रिक है, लाइक दिस इज अ ब्रिक, ये ब्रिक है तुम्हारा, और इसके डायगोनल, तो लाइक एक ये डायगोनल हुआ, एक ये डायगोनल हुआ, एक ये डायगोनल हुआ, या फिर इधर से कर लेते हैं, बेसिकली ये वाला ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये तुम्हारा ये और ये वाला सरफेस, तुम्हारा एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। आई होप तुम समझ पा रहे हो, लाइक चलो मैं सिर्फ डायगोनल्स ड्रॉ करता हूँ। नहीं, ये और ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अगर ये लेते हैं लेंथ और ये लेते हैं ब्रेड्थ और ये लेते हैं हाइट ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो ये वाली जो डायगोनल होगी दिस इज इन्वॉल्विंग ब्रेड्थ और हाइट, तो लाइक बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी लेंथ होगी इक्वल टू जो दिया है इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसको एक्स के साथ ले लेते हैं, दैट इज 9, और इसको सिर्फ 9 के करते हैं, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम, तुम 3x लेके यहाँ पर स्क्वायर कर दो, दैट इज ऑल्सो फाइन, उसके बाद के लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन फिर तुम्हारा जो होगा, अच्छा इसमें वी डोंट नो कि लाइक लेंथ बड़ी है, हाइट बड़ी है, ब्रेथ कौन है, वी डोंट नो दैट रिलेशन, वो हम एंड पर देखेंगे वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। वी आर जस्ट कंसिडरिंग दिम एज अ एज, ठीक है, एज है, कोई मतलब नहीं है कि लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ऐसा नहीं कि लेंथ ही हमेशा ब्रेथ से बड़ी होगी, ठीक है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो अगेन दिस विल बी लेंथ प्लस, तो लाइक 3 कॉम्बिनेशन होंगे, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, दिस आई वॉज शोइंग यू विद द डायग्राम, बट ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं है, 3 कॉम्बिनेशन होंगे, जस्ट उससे सॉल्व कर दें, है ना। बट विजुअलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पहले से दिखना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। एक इनमें से ये होगा, दैट इज 4 3 12। बचा कौन सा कॉम्बिनेशन, बी स्क्वायर का हो गया, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का एक कॉम्बिनेशन बचा, दैट इज 15 के। इन सबको ऐड कर दो। ऐसी इक्वेशन हमने अर्थमेटिक में की थी, मैंने तुम्हें वहाँ पर बताया था कि ये बहुत रिपीट करते हैं फ्रिक्वेंटली। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू, दैट इज 36 एंड यहाँ पर 2 आएगा तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है, ये सारे 2 आएंगे ना तो ये 18 के बराबर हो जाएगा। 15 9 24 12 26, कैलकुलेशन इज राइट। देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एज, ओके शॉर्टेस्ट एज 18 है, 18 में से जब सबसे ज़्यादा घटाओगे तब शॉर्टेस्ट एज निकलेगा, तो 15 हटा दो, तो डैट इज बी की वैल्यू मिलेगी बी स्क्वायर इक्वल टू 18 माइनस दैट इज 3 के, ठीक है। एंड लॉन्गेस्ट जब सबसे कम हटाओगे दैट इज 9, तो यहाँ से एल मिलेगा एल स्क्वायर इक्वल टू 9 के। अब पूछ रहा है कि लाइक रेशियो पूछ रहा है, तो ये अभी स्क्वायर्स का है ना, तो इनका रूट कर लो, तो √3 एंड 3, सो दिस रेशियो इज लॉन्गेस्ट टू पूछा ना, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एज टू द लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, तो बेसिकली दिस इज 1/√3 शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, तो ये वाला शॉर्टेस्ट था ना 3 मैंने ऊपर रखा था, ठीक है, तो 1:3 इज द आंसर। अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई होप मैं अपने साइड से सही कर रहा हूँ, ठीक है। द बेस ऑफ अ रेगुलर पिरामिड इज ए स्क्वायर, एक रेगुलर पिरामिड है, ये तुम्हारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, रेगुलर पिरामिड है एंड ये स्क्वायर है, एंड तो लाइक ये ऐसा कुछ होगा, दिस इज पिरामिड, दिस इज पिरामिड। नाउ द अदर 4 साइड्स, तो ये तुम्हारी जो 4 सरफेसेस है ना, 4 सरफेस जो तुम्हारे लाइक ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मतलब लेंथ बिंग 20, तो अगर इक्विलेटरल है तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, है ना, तो स्क्वायर का भी जो साइड है वो भी 20 है, तो वर्टिकल हाइट निकालना है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, अगर तुम लाइक तुम इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज देन दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तुम अगर यहाँ से इसका सेंटर ले लो स्क्वायर का, और डायगनली तुम यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, अगर स्क्वायर ये 20 है तो ये कितना होगा 20√2, दिस इज 10√2, आई एम ड्रॉइंग इट हियर, ये वाली लेंथ ABC ले लेते हैं, हाइट AB, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो BC हमें निकालना है, AB कितना है 10√2। अब ये इक्विलेटरल की साइड है ना, AC इज द साइड ऑफ इक्विलेटर, कितनी होगी 2 होगी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा लाइक 10√2, 10√2 से ही तो 20 बनेगा, है ना, लाइक अगेन ये तुम्हें रेशियो अगर तुम्हें पता होगा तो आसानी से कर लोगे, 1 1 √2 ऐसा कुछ, क्या √2 से तुम्हारा 2 बनेगा, ठीक है, तो 1 1 √2 ऐसा कुछ होता है, फाइन। अदरवाइज पाइथागोरस यूज करके भी निकाल लोगे, तो क्या पूछा, वर्टिकल हाइट 10√2 इज द आंसर। Okay, so these were the 10 questions, and next remaining 10 question we'll discuss in the next class, and do this homework. This is the question, just ये वाला क्वेश्चन है, just try and let me the solution in the comment section. अगर नहीं सॉल्व होता तब भी मुझे बताओ, इफ यू नीड सॉल्यूशन लेट मी नो, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन दैट आई एम सेलेक्टिंग कि लाइक हाँ ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे कवर कर रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, और प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं शायद ये क्वेश्चन इस बार आ जाए एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। आई एम थिंक मैक्सिमम ऑफ लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, है ना, ये चैनल ज्वाइन कर लो, एनी अपडेट यू विल गेट देयर, नोट्स वगैरह तो यहाँ पर मिल जाएंगे, लाइक जैसे मैंने अभी ज्योमेट्री के नोट शेयर किए हैं, यू विल गेट इन दिस टेलीग्राम चैनल, मेक श्योर ज्वाइन। बाकी इसको तो सब्सक्राइब और इसको भी ज्वाइन कर लेना है, फेसबुक में भी कभी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है। So that's it for today. Let's see you in the next video.